لیکن اچھا اب یہ مجھے لگتا ہے یہ ہے تو 2 نمبری، لیکن ان لوگوں سے بعید کوئی نہیں، اس میں حقیقت بھی ہو سکتی ہے. تو ایک نئی ریسرچ آئی ہے، اخبار میں چھپی ہے پاکستان میں. وہ خبر یہ ہے کہ مسلمانوں نے طواف روک دیا تو زمین گھومنا بند ہو جائے گی. زمین یہ کی پرانا گردش، آئی تھنک یہ کوئی پرانا تراشا ہے، میں نے بھی دیکھا ہے. چلیں آپ یعنی بولیں. سچ ہے تو پرانا ہی ہے، تو لیکن پرانا ہے ہی سچ مجھ میں یہ مطلب یہ پرانا ہی ہے. نہیں، یعنی کسی نے واقعی لکھا تھا، میں تو سمجھتا کسی نے ہاں ڈرامہ کیا. بالکل بالکل بالکل، یہ اخبار کا حصہ ہے اور یہ امریکیوں کی تحقیق، یہ بالکل ریئل ہے، یہ وہ فیک نہیں ہے، یہ ریئل کسی نے تصویر لی ہوئی ہے اخبار کی. اچھا اب وہ چلے، کتنا پرانا ہے وہ مجھے نہیں پتا. زمین کے تو لوگوں کو بتا دینا، ہمارے ہندو بھائی بھی بڑے خوش ہوں گے اس سے کہ تم لوگ ہر وقت یہ اسلاموفوبیا تم ہندوؤں نے پھیلایا اور ایتھیسٹوں نے اور کرسچنوں نے. اگر مسلمانوں نے کعبے کے گرد گھومنا بند کر دیا نا تو جدید امریکی تحقیق کے مطابق زمین گھومنا بند کر دے گی. اور طواف یا عبادتیں بند کرنے سے اس کی کشش جو گریوٹی ہے نا، یعنی گریوٹی اور افادیت ختم ہو جائے گی. افادیت کی کون سی، اس سے کیا مراد؟ اچھا جی، پروفیسر کس نے کہا؟ پروفیسر لارنس جوزف کی تحقیق کے مطابق اس نے کوئی ایکسپیریمنٹ کیا اور اس نے بتایا کہ خانہ کعبہ میں نصب ہجرہ اسود جو ہے، وہ جو جس کی شکل ایسی ہے، ہجرہ اسود میں سب سے زیادہ معدنی کشش پائی جاتی ہے. معدنی کشش کیا مطلب؟ منرل. اچھا منرل کی. اچھا ہاں یس یس اوکے. کون سی ہوتی ہے؟ ہاں نہیں، وہ منرل کے فوائد جو ہوتے ہیں نا، وہ جو منرل کی لوگ اس کی کمپنی میں جا کے اس کو اسمیل کرتے ہیں. جیم سٹونز کی کشش، جیم سٹونز. ہاں بڑی ہمیں اچھا پروفیسر لارنس نے پھر اینڈ میں یہ بھی ایڈ کر دیا، اس نے کہا ہمیں مسلمانوں کا تاریخی جملہ، یہ پروفیسر صاحب نے تاریخی جملہ بول دیا، حارث پڑھ کے سنائے. پروفیسر لارنس جوزف نے بیان دیا، انہوں نے کہا ہمیں مسلمانوں کا احسان مند ہونا چاہیے. یہ دنیا کی حرکت یہ ان سے ہی ہے. یار ان کو کچھ نہیں کرنا، یہ اخبار والوں کے. لارنس جوزف نے پڑھو، یہ جھوٹی خبریں اس زمانے میں جب صرف لوگوں کو انفارمیشن نیوز پیپر سے ملا کرتی تھی یا ریڈیو سے. یہ پروپیگنڈا وغیرہ اس ٹائم کا ہوگا، کہیں آج کا تو ایسی حرکت کریں گے تو پکڑے جائیں گے فوراً. کوئی نہیں پکڑے جائیں گے ان بغیرتوں کو، کس نے پکڑنا؟ آپ ٹی وی کے اوپر آ کے اس طرح کی باتیں کرتے ہیں یار. وہ کہتے نہیں، آپ نے نہیں دیکھا ویڈیو میں مولوی کھل کے کہتے کعبے کے اوپر کبھی کوئی کبوتر نہیں جاتا، کوئی اوپر سے جہاز نہیں اڑتا. وہ انیتا گئی اوپر، وہ انڈین نسات کی ناسا کی ایسٹروناٹ تھی، وہ اوپر گئی، اس نے دیکھا پوری دنیا میں اندھیرا ہے، کعبے سے روشنی نکل رہی ہے. گپے تو اب بھی ٹکا کے مارتے ہیں یہ لوگ، ان کو کون روکنے والا؟ وہ گپ مار دیتے ہیں، جو جاہل لوگ بیٹھے ہوئے پاکستان میں وہ انجوائے کر رہے ہوتے ہیں. لیکن مکہ مکرمہ امریکیوں نے لکھا ہے. اچھا امریکیوں نے لکھنا بھی امریکیوں نے لکھا ہے اگر مسلمان کرۂ ارض پر طواف یا عبادتیں کرنا بند کر دے تو ہماری زندگی اپنے معمول کے مطابق گھومنا بند کر دے گی. زمین کا چکر یک لخت رک جائے گا کیونکہ زمین کی گشت کا محور ہجرہ اسود پر قائم ہے. بقیہ اچھا وہ یار بقیہ کیوں نہیں کسی نے کیا؟ میں اور بھی دیکھنا چاہ رہا تھا کہ اور کتنا پھیلایا ہوگا اس کو. آئی تھنک ان کے ذہن میں وہ جو بچوں کا جھولا نہیں ہوتا جو ایک بندہ دوڑ کے گھما رہا ہوتا ہے، ان کے کوئی ایسا کانسیپٹ ہے زمین کا جو انہوں نے کہ وہ یہ طواف کرتے ہیں تو اور گھومتی رہے. وہ جیسے وہ ریٹ ریس کا بھی ایک آتا ہے نا، وہ ریٹ جو ہے وہ ڈرم کے اندر بھاگ رہا ہوتا ہے، ڈرم گھوم رہا ہوتا ہے. تو آئی تھنک یہ وہی سمجھ رہے ہیں کہ مسلمان طواف کر رہے ہیں تو وہ پنگوڑے، جیسے پاکستانی نے کہا نا، پنگوڑے کی طرح گھوم رہی ہے دنیا. ہاں اچھا یہ بات بتائیں کہ یہ چیٹنگ تو ہر چیز میں کرتے ہیں، آب زمزم میں بھی پانی ایڈ کر رہے ہیں، لوگوں کو نہیں بتاتے. تو اسی طریقہ یہ جو پتھر ہے اس کو تو یہ تو بہت زیادہ گھس چکا ہے. اب یہ گھس گھس کے جب ختم ہو جائے گا تو پھر کیا کریں گے؟ نہیں یعنی آپ کیا وہ تو ملائم ہو گیا ہوگا، ویسے بڑے رف سی سرفیس ہوتی ہے. تو آپ یعنی کہنا چاہ رہے ہیں کہ چمیاں کر کر کے لوگوں نے اس کو گھسا دیا؟ ہاں نہیں گھس گیا ہے. نہیں آپ بہت سارا گھسا، آپ نے دیکھا نہیں اس کی شیپ کیسے ہوگی ہے. اٹس گون ان سائڈ، بالکل وہ کرویچر وہ بن گیا اس کا، بہت گہرا ہو گیا وہ تو. نہیں لیکن ہمیں یہ نہیں نا پتا، ہمیں اس کے لیے تو ہمیں یہ پتا ہونا چاہیے نا کہ پہلے کیسا تھا وہ. پہلے تو وہ پہلے جوڑ کے ایسا جیسا بھی ہوگا ایسا نہیں ہوگا. اتنے عرب چمیاں عربیوں کی ہاتھ لگاتے تھے، ہاتھ رب کر کے انہوں نے کافی گھسا دیا ہے. دوسری بات یہ کہ اکارڈنگ ٹو ہسٹری تو یہ پتھر ٹوٹا ہوا ہے
उसको उन्होंने लेड डाल के वॉट एवर जो उन्होंने जोड़ा कौन सा हुआ था है, जिसने वो कौन सा था जो उसके ऊपर बैठ के पोटी करता रहा था इसके ऊपर? करामती था ना वो तो। हाँ, वो करामती था, उसने वो उठा के ले गया था हजर अस्वद देना पत्थरों की दुनिया में पता नहीं कौन से गुनाह किए हैं, उसको यहाँ भेजेगा कि चल तेरी सजा है, तेरे पे आके लोग क़यामत तक चुम्मियां लेंगे। नहीं, एक वो भी पत्थर था ना, वो हदीस में ये भी तो था ना, वो हजरत मूसा वाली, वो साहबी, वो कौन था साहबी, मेरा ख्याल वही था। वो कहता है उसके ऊपर हजरत मूसा ने उसको इतने छितर मारे कि उसके ऊपर अभी भी जरब के निशान पड़े यार हैं वो उस पत्थर के हदीस तो ऊपर। फिर उस ओ पे हाँ, बनी हरीश हुई थी भाई, सबकी, वो तो वो साहबी की बात नहीं है, दिस गोज ऑल द वे टू द टॉप। वो बता रहे हैं कि उधर अभी भी निशान है। ये नहीं, वो हजरत ये मूसा को तप भी बहुत थी और बनती भी है ना। आप नहा रहे हो कि कपड़े लेके दौड़ जाए तो आप कपड़े भी लेके भाग गया, ऊपर से बंदा फिर भाग रहा हो उसके पीछे और वो आवाजें दे रहा हो, ओ पत्थर, ओ पत्थर। मेरे हाँ, कपड़े वापस कर। अबू हुरैरा से रिवायत है, लेकिन हजरत मोहम्मद ने कहा है, ये सही बुखारी हाँ 278वीं हदीस है। एंड ये में उर्दू में ऐसे नहीं। अच्छा, अच्छा जी, अच्छा जी, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि बनी इसराइल नंगे होकर नहाया करते थे। क्या सारे इकट्ठे रल मिल के कहते थे अरे आ जाओ, आ बाकी जाओ कौन सा भी। रजाइयां लेके नहाते हैं, सारी दुनिया नंगा ही नहाती है। खैर नहीं नहीं, लेकिन वो सारे इज्तमाही तौर पे नहाते थे ना, सारे कपड़े उतारे, अच्छा सारे अच्छा तालाब में अच्छा। छलांग मारते, स्विमिंग पूल में ना। स्विमिंग पूल, शावर वगैरह तो की फैसिलिटी तो होती नहीं थी उस जमाने में। तो अच्छा, एक शख्स दूसरे को देखता, लेकिन हजरत मूसा बड़े शर्मीले थे, वो तन्हा पर्दे से ना गुस्ल फरमाते थे, वो दूर जाके ना गुस्ल फरमाते थे। इस पर उन्होंने कहा, बाखुदा मूसा को हमारे साथ गुस्ल करने में सिर्फ ये चीज मान्य है कि आपके खसिए बड़े हुए। खसिए मीन आपकी जो थैली लटक रही होती है नीचे, पोटली, वो बहुत बड़ी हो चुकी है। वो आप लटकी हुई है सोचें नीचे। किसी ने फिलोसफर ने बैठ गया, किसी लीडर ने कहा होगा बाखुदा मूसा को हमारे साथ गुस्ल करने में सिर्फ ये चीज माने है कि इसके खसिए बड़े हाँ, बड़े यानी ये नहीं हो मोतबर सकती, लोग। यानी यानी ये नहीं, ऐसा नहीं हो सकता कि हो सकता है वो शर्मीला हो सकता है उसको पसंद ना हो, लेकिन उसने भी क्या। अच्छा, तो अल्लाह मियां ने कहा, मेरा इतना प्यारा नबी, अब इसके बारे में ये अफवाह फैल गई है, तो अब मुझे कोई ऐसी तरकीब सोचनी चाहिए कि मेरे जो प्यारे नबी हैं उनकी इज्जत बच जाए। तो क्या तरीका उनके जहन में आया होगा? या तो अल्लाह मियां के तक बस में सारा कोई, ये 4-5 लोग जो अफवाहें फैला रहे हैं उनके जहन में इंफॉर्मेशन डाउनलोड कर दे कि ये बात गलत है, अल्लाह कर सकता नहीं काम। अल्लाह ने कहा ना, अल्लाह मियां भी बेचारे सारी बात ऊपर प्ले स्टेशन खेल खेल के बोर हो गए। पहले वो कहते हैं यार क्या है यार, कोई मजे वाली, मुझे लगता है रिमोट कंट्रोल उनके हाथ में था, तो कहता था वो कर देते कॉमेडी चैनल ऑन कर दो। तो उन्होंने क्या किया, हजरत मूसा घुसे, एक मर्तबा मूसा गुस्ल करने लगे और आपने कपड़ों को एक पत्थर पर रख दिया। चला जी मौज करो, कोई गाल नहीं। इतने में पत्थर कपड़ों को लेकर भाग गया, कोई इंसान नहीं, इतने में पत्थर कपड़ों को लेकर भाग गया। वो पत्थर हमने पहले बातों करने वाले पत्थर देखे थे, ये वाले इस तरह का कोई शरारती पत्थर होगा। सारे बाकी पत्थर दाल निकाल रहे थे। वो अच्छा, बगल में लेके भाग गया। वो पत्थर, अच्छा पत्थर के अल्लाह मियां ने फिर हाथ भी निकाले होंगे, वो क्या किया होगा नीचे पहिए के, पता नहीं, अल्लाह के काम, अल्लाह जाने। पत्थर बहरहाल लेके भाग गया और मूसा ने उसके पीछे दौड़ लगा दी। हजरत मूसा ने उसके पीछे बड़ी तेजी से दौड़े। आप कहते चले जा रहे थे, ए पत्थर मेरे कपड़े लौटा दे, ए पत्थर मेरे कपड़े लौटा दे। इस अरसे में बनी इसराइल के सारे लोगों ने हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को नंगा भागते हुए देख दिया। उन्होंने कहा, वो तलवार थाड़ थाड़ उधर चीजें भागे। उन्होंने देख लिया, फिर उन्होंने कहा, अल्लाह बाखुदा, वही लोग जो पहले कह रहे थे ना बाखुदा हजरत मूसा के खसिए बड़े होते होंगे, उन्होंने ही कहा बाखुदा मूसा के तो खसिए बड़े नहीं है, उसके तो बड़े खूबसूरत खसिए हैं। तो मूसा ने कपड़े को फिर पकड़ लिया, जब लोगों तक हकीकत यहाँ हो गई तो मूसा ने कपड़ा लिया और पत्थर को पिटाई शुरू कर दी। ये जो पत्थर थे वो कहते हैं फाड़ लिया था उन्होंने उनको पकड़ लिया और फिर उन्होंने हजरत मूसा ने जो दौड़ लगाई। अच्छा, ये बात अबू हुरैरा ने ऐड की, मैं आपको बता रहा था ना, ये बोंगी हजरत मोहम्मद नहीं मार सकते, ये वाली एंड वाली। अबू हुरैरा ने मजीद बताया कि बाखुदा उस पत्थर पर 6 या 7 मार के निशान अभी भी बाकी हैं। अच्छा, उन्होंने राशि फैंटी लगाई पत्थर के ऊपर, ये इमेजिन करो। कौन सी किताब की हदीस है, कौन सी सही बुखारी 278।
अच्छा सही ओके बुखारी है या मुस्लिम है, ओके इनमें से एक है? मेरे अच्छा, सही अगर बुखारी बुखारी है, आप कह रहे हैं बुखारी है ये? हाँ ये देखें सही बुखारी 278 ओके, उसकी उसकी ग्रेडेशन क्या है, नीचे क्या लिखा हुआ? सही है बुखारी सही की सारी बुखारी सही में है। जब आ गई तो फिर हसन काजुल हसन है, नबी सही है, क्या लिखा हुआ नीचे? नहीं ये हाँ सारी सही। सही है, सही उल ओके, बुखारी है, ये सारी सही है अब मैं बुखारी। आपसे पूछता हूँ, अब मैं आपसे ये पूछता हूँ, ये खबीस दाढ़ियों वाले जब मेंबर पे स्टेज पे बैठ के झूठ बोल रहे होते हैं आवाम से, मैं इसलिए खबीस बोल रहा हूँ कि लोगों को फूल बना रहे होते हैं। जब ये लोगों को झूठ बोल रहे होते हैं तो ये क्या समझते हैं कि इनके भी दिमाग मटर के साइज के हैं कि जब बच्चे को मदरसे में फेंक के जब उसको ब्रेन वॉश करके बाहर निकाल देते हैं तो दूसरों के भी दिमाग क्या ऐसे ही होते हैं? आप मुझे ये बताएं, अगर ये इमाम बुखारी ने छांटी की थी और बड़ी उन्होंने जबरदस्त किस्म की तहकीक की थी, तो ये हदीस कैसे दाखिल हुई और कैसे इसकी इसकी इसके अंदर उनको कोई नकाइस नहीं मिले? मुझे ये नहीं, बात फ्रॉम बताओ। पायलट सही एक बुखारी में मिनट, कॉमेडी सेक्शन है, ये उसमें है नहीं, वो। ये जिस तरह की बोंगियां मार रहे होते हैं कि बड़ी नहीं तहकीक हुई और इन्होंने रिवर्स इस तरह की ऐसा इल्म और रिजाल इन्होंने बना लिया था कि इनको तीसरा चौथा बंदा भी इनको पता था कि वो बंदे ने भी ये बात की। ऐसा रिवर्स करने का तरीका हम क्यों नहीं कर लेते? तो हम मेरे ख्याल में पीछे मिर्जा गालिब या पीछे जो बंदे गुजर चुके हैं उनकी सारी बातें हमें मालूम कर सकते हैं। यानी ऐसा कौन सा तरीका है कि आपने तो बात मुझे बताई, आप सच्चे आदमी हो, ठीक है, आपकी मेमोरी अच्छी है, आपका अच्छा कैरेक्टर है, आपका आपने ज्यादा से ज्यादा बाप का बता दोगे, चचा का बता दोगे जिससे सुना था आपने, यस ओके। ना मुझे चौथे बंदे का मुझे ये बात बताए कि वो बंदे से उसने कैसे सुना था, और जब जो बंदा याद कर रहा था, जब मैं आपसे पूछूंगा तो आप ज्यादा से ज्यादा ये कहेंगे कि मेरे वालिद ने मुझे बताया था। मैं आपसे पूछूंगा आपको याद है वालिद को किसने बताया? हाँ, उन्होंने मेंशन किया था, एक आमिर नामी आदमी था। ओके, अगर स्ट्रॉन्ग मैं आपसे पायलट आप एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट मिस कर रहे हैं, वो ये है कि इस पत्थर पे अभी तक निशान बाकी हैं, ये सबूत है, यानी इसमें इससे इतनी बड़ी तहकीक की बोंगी को जो बंदा एक्सेप्ट कर सकता है अपनी सही बुखारी में डाल सकता है, ये सारी गार्बेज जो है, ज्यादातर गार्बेज एक नामालूम शख्स, वो जो अबू हुरैरा के नाम नामालूम, इस तरह की जो भी इस तरह की खराफात है ना, उठा के अबू हुरैरा के नाम नहीं, लगा स्ट्रॉन्ग देते हैं। नहीं पायलट अनस मुझे एक बात अनस ने भी बताएं, की है, अनस ने भी बड़ी की है। आपको पत्थर के दौड़ने पे एतराज है या पत्थर के कपड़े लेके दौड़ने पे एतराज है? कौन सी चीज पे आपको यकीन ये नहीं आता? यार पत्थर के मुझे दांत निकालने पे। एक इतराज ये है कि उस पत्थर की किसने उंगली दी थी कि तू उसके खसिये लेके और कपड़े लेके दौड़ पड़? मुझे उसको और किसने ये ये तो लेके अल्लाह नहीं मियां का स्ट्रॉन्ग प्लान था पायलट। ना, ये तो अल्लाह मियां ने करवाया था ये प्लान, हाँ ताकि अल्लाह वो मियां का जाहिर हो प्लान था जाए। ना ये। तो ताकि उनको बता दे कि इनके खसिये तो वैसे ही उधर खड़े होकर देखिए, इसकी वो जो सब मैंने बता देता। तावील सुनी है मुफ्ती साहब से, जो मुफ्ती यासिर साहब से तावील सुनी है कि बज़ाहिर कभी कभी आपको चीज बेइज्जती का बाइस लगती है, लेकिन उसका लार्जर जो मकसद होता है वो इज्जत में इंक्रीज होता है। तो इसमें बेशक वो भागे और सबको उनके खसिए देखे, ये आपको बज़ाहिर तो बेइज्जती लगती है कि पत्थर के पीछे दौड़ रहे हैं और पत्थर कपड़े लेके भागा हुआ है, ओफ, लेकिन आप ये देखें कि बनी इसराइल ने फिर कहा कि बाखुदा इनके खसिए बिल्कुल ठीक है। आप लार्जर नैरेटिव देखा करें, बिगर आप एक पिक्चर। सीन, हाँ, हाँ बिगर पिक्चर देखा करें। पत्थर कपड़े लेके नहीं, दौड़ गया तो इसमें बिगर ऐसी क्या बात? पिक्चर नहीं, मतलब बिगर पिक्चर के जो खसिये से बड़ी वाली चीज है उसको बिगर पिक्चर वाली को देखे, मतलब मुझे समझ नहीं आ रहा कि यासिर काजी इसको एंडोर्स कर रहे हैं इस हदीस को। यासिर नहीं, मुफ्ती यासिर वाजिदी। वाजदी। मुफ्ती यासिर वाजदी, चूंकि उसको अगर लिखा जाए ना उसकी किताब में कि शिट खाना हलाल है तो वो खा लेगा, मुफ्ती यासिर खा नहीं लेगा। तो फिर बिलीफ है ना स्ट्रॉन्ग ये तो पायलट, बिलीफ है ना, लेकिन सही अच्छा चले बुखारी में अगर आगे चीज चलते हैं। ऊंट का पेशाब भी तो है। चले हाँ वो उनका पेशाब भी है। अच्छा मेरे इस नेक काम को जारी रखने के लिए मुझे पेपैल या पेट्रियन पे जरूर सपोर्ट कीजिए ताकि मैं अपना पैगाम ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचा सकूं।